Today I want to touch really about God. तो आज हम बात करेंगे परमेश्वर के बारे में, Because we hear about God, our parents told us about God, हमने बचपन से ही परमेश्वर के बारे में बहुत सुना है, माता पिता भी बहुत कुछ सिखाते हैं and we read about God. और हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते भी हैं, But sometimes we don't know who is God. लेकिन हमें कई बार ये नहीं पता कि परमेश्वर है कौन। So can somebody tell me who is God? तो कोई बताए कि परमेश्वर कौन I है? think this is one of the simplest questions ये ever. सबसे आसान प्रश्न है आज तक का। Who is God? परमेश्वर कौन है? Simplest God is question. almighty. Eh? God is almighty. He's the creator of the world. God is Almighty. Yes. But if you are telling me His name, Almighty, that is His name. I say, who is God? परमेश्वर कौन है? You are telling He's Almighty, that is another of His name, is this. But who is God? परमेश्वर कौन Creator है? of the universe. Creator of the universe is His name. But who is God? सृष्टि Creator of the universe is all names of God. You can call Him सृष्टिकर्ता तो परमेश्वर है। Elohim, Adonai, the light of the world, the Redeemer. All you can call, but who is God? हम सृष्टिकर्ता या एलोहिम जो भी नाम लेते हैं, यहोवा, ये सब तो नाम है उनके, लेकिन परमेश्वर है कौन? You're supposed to know who you are serving. Your Father, the God. The God of Abraham, the God of वो Isaac. परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का। God is a powerful spirit. Amen. परमेश्वर एक सामर्थ्य से भरी हुई आत्मा है। Talk to somebody. किससे बात करें? I say, God is a powerful spirit. बोले परमेश्वर एक सामर्थ्य से भरी आत्मा है। You know, many of us have weakness spirit. तो हम में से बहुत सारे लोग में कमजोरी की आत्मा है And this also sometimes confuse us. और इसलिए कई बार हमें कंफ्यूज कर देती है। That's why many people says that every spirit is God. इसलिए कुछ लोग कहते हैं हर आत्मा परमेश्वर ही है, But every spirit is not God. लेकिन हर एक आत्मा परमेश्वर नहीं है This is what confuses us. और यही हमें कंफ्यूज करता है। Once it is called a spirit, एक बार तो उसे आत्मा कहते हैं, we think that the person is God. हम कहते हैं अगर ये आत्मा है तो मतलब ये परमेश्वर है। But when a spirit is all powerful against all other spirits, लेकिन अगर कोई ऐसी आत्मा है जो बाकी सारी आत्माओं से ज्यादा सामर्थ्य रखती है, all other spirits बाकी सारी आत्माओं से ज्यादा, worship and bow to Him. तो उसी के सामने झुके। You are running for your life. अब अपने जीवन के लिए भाग रहे हैं, The most dangerous spirit is after you. आपके पीछे बहुत खतरनाक आत्मा भाग रही है। When people have had this kind of dream, बहुत सारे लोगों को सपना आता है कई बार in your dream somebody is pursuing कि you कोई आपके पीछे भाग रहा है and you are running for your life. और अपने जीवन के लिए भाग रहे हैं। ऐसा कई बार हमें सपना आता है And the spirit is very huge. और वो आत्मा बहुत सामर्थ्य और बहुत बड़ी है And you were running. और हम भाग रहे हैं, And you were running. आप भाग रहे हैं And the spirit is coming after you. और वो आत्मा आपके पीछे भाग रही है And immediately the spirit lay hand to catch you. और अचानक से वो आत्मा अपना हाथ आगे बढ़ाती है आपको पकड़ने के लिए। You see yourself falling under the feet of another spirit. और आप देख रहे हैं अपने आप को किसी और आत्मा के सामने झुकते हुए और गिरते हुए And you see that spirit following you, और आप देख रहे हैं उस आत्मा को जो आपके पीछे चल रही है moving back, और वो वाली आत्मा पीछे हो जाती है जो आपके पीछे चल रही है, moving back. वो वापस हो जाती है You start to wonder, और आप सोचते हो what is happening? अरे ये क्या हुआ? How the spirit is suddenly moving back. तो अचानक से जो आत्मा मेरे पीछे भाग रही थी वो वापस कैसे चली गई? And behold, the person you fall under his feet. और अब किसी के आगे आपने पैरों को सर को झुकाया हुआ है When you look up, और आप ऊपर देखते हैं you can't even see his face. और आप उसकी शक्ल की ओर देखते हैं, Flash of light. आप देखते हैं उसकी शक्ल पे चमक है Your eyes become glow. और आपकी आंखों में भी चमक भर जाती है And he disappears. और वो चीज गायब हो जाती है And you wake up. और आप जाग जाते हैं You will start to pant. और आप लंबी लंबी सांस लेते हैं। All other spirit has faces. बाकी सारी आत्माओं के पास शक्ल होती है, You can see their faces आप sometimes. उनकी शक्ल भी देख सकते हैं,
But nobody have ever seen God. लेकिन परमेश्वर को आज तक किसी ने नहीं देखा। In the history of the world, इस दुनिया के इतिहास में no eyes किसी भी आंखों ने living on this earth have जो इस seen. धरती पे जिया उसने कभी परमेश्वर को नहीं देखा। It comes as a flash of वो light. हमेशा एक रोशनी के रूप में आते हैं। It's all powerful spirit. उनके अंदर सबसे ज्यादा सामर्थ्य भरा हुआ है। You know, many people don't understand who is God. बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि परमेश्वर कौन है। Some people can invoke some kind of spirit कई लोग कई आत्माओं को बुलाते हैं and they may take that spirit as their God. और वो सोचते हैं कि ये आत्मा जिसको मैंने बुलाया है यही परमेश्वर है, But actually they are not God. लेकिन वो परमेश्वर नहीं होती। God is a powerful spirit. परमेश्वर एक सामर्थ्य से भरी एक आत्मा है। He's a powerful ruler. वो एक राज करने वाली आत्मा है। When he enters in this house, अगर वो आत्मा इस घर में आ जाए no other spirit dares to come. तो कोई और आत्मा नहीं खड़ी रह सकती उनके आगे। If he is coming here, अगर वो आत्मा यहाँ आ जाए every spirit in this place leaves. तो यहाँ पर कोई और आत्मा जो भी होगी वो निकल जाएगी। I don't know whether you understand what I mean. That when God is here, अगर परमेश्वर यहाँ पर है no other spirit on his earth तो इस धरती पर और कोई भी आत्मा stays in यहाँ नहीं रह this सकती। earth. Everybody must go. तो और किसी आत्मा को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। That is who God is. वही परमेश्वर का सामर्थ्य है। It takes time to know God. तो परमेश्वर को जानने में समय लगता है। And this is a God, you know, all other gods are impatient. बाकी सारे जो देवी देवता हैं उनके अंदर धीरज नहीं होता। When you have a covenant with any other God, अगर आप किसी और देवी देवता के साथ वाचा बांध लेते हैं if you fail that covenant, और अगर आप उस वाचा को पूरा नहीं कर पाते हैं they have no patience. They will strike you. तो उनमें कोई धीरज नहीं है, वो आपके ऊपर जरूर दंड डालेंगे। Either they make you sick, या तो आपको बीमार कर देंगे or they make you cripple. या आपको लकवा कर सकते हैं। They can even kill you. हो सकता है आपको मार भी दे। When you have a covenant, you drop your blood with any other spirit, you did sacrifice and there was agreement and you fell. अगर आपने किसी और देवी देवता किसी और आत्मा के साथ वाचा बांधी, लहू बहाया और अगर आप फेल हो गए They have no mercy on you. तो आप पर किसी भी तरह की दया नहीं करेंगे। But this God that is God, who God is, लेकिन जो सच्चा परमेश्वर और जो खुद परमेश्वर है, you might even fail the covenant with Him. तो हो सकता है कि आपने जो बांधी वाचा है कई बार आप उसमें असफल हो जाएं, He still have patience. वो फिर भी आपके साथ धीरज रखेगा। Amen. In His nature, He is not wicked. क्योंकि वो अपने चरित्र के अंदर बुरा नहीं है, In His nature, He is merciful. वो अपने चरित्र में ही दयावान है। I didn't understand that a spirit that is striking you, that means in his nature, where he is born, he is wicked spirit. तो अगर कोई आत्मा आपके पीछे चल रही है, आपको परेशान कर रही है, इसका मतलब अपने चरित्र में ही बुरी है। That is why sometimes many people complain. इसलिए कई बार लोग शिकायत करते हैं He is evil man. कि ये बुरा आदमी है, He murders, he ये kills, लोगों को मारता है, but he is still prospering. लेकिन फिर भी इसके जीवन में इतनी उन्नति क्यों हो रही है? His life is becoming so good. इसका जीवन इतना अच्छा क्यों चल रहा है? But imagine I am so good, I obey God, I do all the good things in my और आप life, मेरे बारे में सोचिए कि मैं तो अच्छे काम कर रहा हूँ, परमेश्वर के पीछे भी चल रहा हूँ, but I'm suffering. फिर भी मैं परेशान हूँ। So why God can't kill all these evil people? तो क्यों नहीं परमेश्वर इन सारे बुरे लोगों को मार देते? He's a merciful God. ये तो दयावान परमेश्वर है। He gives you time to repent. वो आपको समय देता है कि आप पछतावा कर लें। He said he doesn't derive joy in the death of a wicked person, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुरे लोगों के मरने से परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, but he rejoices the day you will come back to लेकिन him. वो खुश तब होते हैं जिस दिन आप पछतावा करके परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं, The God of light. क्योंकि वो परमेश्वर है रोशनी का। You can't see him with your own eyes. अपनी आंखों से उसको देख नहीं सकते, Nobody takes away what is in his power. कोई भी नहीं देख सकता कि वो क्या करना चाहते हैं। The God that has the longest hand ever. तो वो परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं उसके सबसे लंबे हाथ हैं।
The Bible says nobody takes what is in the hand of God. कोई भी नहीं देख सकता कि परमेश्वर के हाथों में क्या है। If He protects you, अगर वो आपको सुरक्षा दे रहा है, if aeroplane falls from above, you will be alive. अगर आप किसी हवाई जहाज में अगर आप बैठे हुए हैं और वो गिर भी गया, लेकिन परमेश्वर ने अगर आपको पकड़ा हुआ है तो आपको कुछ नहीं होगा। The hand of God is so strong क्योंकि परमेश्वर का हाथ इतना ज्यादा मजबूत है that no other spirit on earth takes out what is in the hand of God. क्योंकि कोई और आत्मा जो इस धरती पर है कभी भी वो नहीं ले सकती जो परमेश्वर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। The powerful spirit. क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य बहुत बड़ा है। He says and it comes to pass. परमेश्वर तो कहता है और हो जाता है। When He comes, all other spirit becomes uncomfortable. और जब परमेश्वर की आत्मा आती है और बाकी सारी आत्मा को परेशानी होने लग जाती है। Let's go to 1 John. देखिए पहला यूहन्ना 1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 7वां वचन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन 333 पेज नंबर नया नियम। 1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। But if we walk in the light as He is the light, कि अगर हम ज्योति में चले क्योंकि परमेश्वर भी एक ज्योति है। God is light. परमेश्वर ज्योति है। You can see the shape of all other spirits. आप बाकी सारी आत्माओं की शक्ल उनका चलना फिरना देख सकते हैं। You can describe how all other spirit आप looks बाकी like. सारी आत्माओं के बारे में बता सकते हैं कि वो कैसी देखने में लगती हैं। You can have a dream how tall they are. आपको सपना आ सकता है कि बाकी आत्मा कितनी लंबी, कितनी मोटी, कितनी चौड़ी है। You can't describe God. लेकिन आप परमेश्वर को बता नहीं सकते कि वो कैसे हैं। He is light. क्योंकि वो सिर्फ रोशनी है। You can't say how God looks like. आप नहीं बता सकते कि परमेश्वर कैसा दिखता है। You can have a dream and you have spirit. You come, you see a huge person. He's so black, he's so huge. And somebody come in your dream. You can describe a spirit that came in your dream. आपके सपने में कोई आत्मा आई हम उसको बता सकते हो कितनी लंबी थी, कैसी थी, लेकिन परमेश्वर को नहीं। But God is light. पर परमेश्वर तो ज्योति है। 1 Timothy chapter 1 verse 17. पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय का 17वां वचन। First Timothy पहला तीमुथियुस पहला अध्याय का 17वां वचन 279 पेज नंबर नया नियम। First Timothy chapter 1 verse 17. पहला तीमुथियुस पहला अध्याय 17 वचन। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे एकमात्र परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होता रहे। आमीन। Now to the King eternal. Who is God? कौन है परमेश्वर? Immortal. कोई ऐसा जो अविनाशी है? God is the only powerful spirit परमेश्वर ही एक सामर्थ्य वाली आत्मा है that can destroy all other spirits. और उसमें इतना सामर्थ्य है कि वो बाकी हर किसी आत्मा को नष्ट कर सकता है। God is only powerful spirit that can take away all other spirits. परमेश्वर ही वो आत्मा है जो बाकी हर किसी आत्मा को नष्ट कर सकती है And they will never exist again. और बाकी आत्मा रह नहीं पाएंगी उनके साथ He's immortal. क्योंकि परमेश्वर अविनाशी है। He's invincible. वो ऐसे हैं जिसमें बहुत सामर्थ्य है। Nobody have ever seen God. किसी ने आज तक परमेश्वर को नहीं देखा। The Bible says he's invincible. बाइबल बताती है कि वो अविनाशी है। God alone is wise. परमेश्वर अकेला ही बुद्धिमान है।
You know, Satan always think that he's the wisest ever spirit. शैतान हमेशा सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा समझदार, सबसे बुद्धिमान आत्मा हूँ। But Satan also bows to God. लेकिन शैतान खुद भी परमेश्वर के आगे झुकता है। Amen. Yes. God is only the wise king. सिर्फ परमेश्वर ही है जो बुद्धिमान राजा है। The Bible says, बाइबल बताती है God alone is wise, be honor and glory forever and कि ever. परमेश्वर ही अविनाशी है, महिमा से भरे, और हर महिमा उन्हीं के लिए है। He is the only spirit वो उनकी आत्मा ऐसी है that has the gene of everlasting to everlasting. जो हमेशा युगानुयुग तक चलती रहती है। Do you know that all of that spirit vanishes? आपको पता है हर कोई आत्मा गायब हो जाती है, They melt like ashes and they move out from the realm वो of सिर्फ spirit. राख की तरह है, होती है और चली जाती है। But God is only powerful spirit लेकिन परमेश्वर खुद एक अकेली एक ऐसी आत्मा है जो सामर्थ्य भरा है, that is destined to last forever and जो ever. अंत तक रहती है और खत्म नहीं होती। Psalm 50 verse 6. भजन संहिता 50 का 6। Psalm 50 verse 6. भजन संहिता 50 का 6, पुराना नियम, पेज नंबर 669 79, 50 का 6। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। आमीन। When you die, जब आप मरते हैं, this powerful spirit is the only spirit that has the right to judge you. जब हम मरते हैं तो सिर्फ यही परमेश्वर की आत्मा में ही सामर्थ्य है कि वो हमारी आत्मा का न्याय कर पाए, He is the chief judge. क्योंकि वही न्यायाधीश है। No ever spirit will tell you they are going to judge you. कोई और आत्मा को ये नहीं कह सकती कि वो आपकी आत्मा का न्याय करेगा। What you hear from other spirits is they will destroy you. जो आप बाकी आत्माओं से सुनेंगे, बस यही सुनेंगे कि वो आपको नष्ट करना चाहती है। All other spirit tells you, I'm going to kill you. बाकी आत्मा को क्या बोलेगी कि वो आपको मारना चाहती है, I will make your life कि miserable. मैं तुम्हारा जीवन खराब कर दूंगी, I will destroy your generation. मैं तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को खराब कर दूंगी। But no spirit will tell you, I will judge you. लेकिन कोई भी आत्मा को ये नहीं बोलेगी कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगी, Because God is the only chief judge. क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारा न्याय कर सकते हैं, He is the only one that forgives. और वही है जो अकेले हमें माफ कर सकते हैं, And He is the only one that punishes. और वही है जो हमें सजा भी दे सकते हैं। Amen. You may commit murder. हो सकता है आपने किसी का खून भी किया हो, And the other spirits will say you committed murder. और बाकी आत्मा क्या बोलेगी कि आपने खून किया, It's only God that says लेकिन सिर्फ परमेश्वर ये जो कहेगा you are free. कि चलो मैं तुम्हें मुक्त कर दिया, And every other spirit bows. और हर कोई आत्मा उनके सामने झुक जाएगी। No other spirit has the right to question Him. कोई और आत्मा के पास ये अधिकार नहीं कि वो परमेश्वर की आत्मा पर प्रश्न उठा पाए, Because everybody is living under the power of God. क्योंकि हर कोई आत्मा सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य से ही जिंदा है। The next thing I want to touch about is तो अगली चीज हमारे भाई बताना चाहते हैं some of the mistakes that we make. कि कुछ ऐसी गलतियां जो हमेशा हम करते हैं। I want to tell you हमारे भाई बताना चाहते हैं who God is not. क्या परमेश्वर नहीं है। I want to tell you who God is not. अभी ये बताया कि परमेश्वर कौन है, लेकिन क्या चीज परमेश्वर नहीं है वो ये बताना चाहते हैं। God is not a deity. परमेश्वर कोई देवी देवता नहीं है। Some people will go and take कुछ लोग सोचते हैं कि उसको ले लो, खरीद लो, and take one spirit for them और एक आत्मा उसमें डाल दो, and they will put it in their house अपने घर में सजा दो, and that is their they say it's God. और कहते हैं अरे ये तो परमेश्वर है। It is not. वो परमेश्वर नहीं है। God is not a demigod. परमेश्वर कोई आधा परमेश्वर भी नहीं है। It is not a sacred being that you worship. ऐसा नहीं कि कोई पवित्र चीज है जिसकी आप आराधना करते हैं। Many people confuse themselves about God. बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परमेश्वर के बारे में। You know, when people have some magical powers, जब लोग सोचते हैं कि किसी के पास जादू करने का सामर्थ्य है,
When people can predict something and it happens. और कुछ लोग कहते हैं कि अरे ये इंसान जो बोलता है ना वही हो जाता है। When they have that power to cause somebody pain. वो कहते हैं कि अरे जो किसी के लिए गलत भी बोलता है ना तो वो भी हो जाता है। And they see that God as the God that we are talking about. और वो कहते हैं कि अरे वही परमेश्वर है। God is not our ancestral spirit. परमेश्वर हमारे पूर्वजों की आत्माएं नहीं है। You know, many people worship so many things and say, "It's my God." बहुत सारे लोग अलग अलग चीजों की आराधना करते हैं और कहते हैं यही मेरा परमेश्वर है। We should understand हमें समझने की जरूरत है the difference between the powerful spirit, which is God, कि क्या अंतर है वो आत्मा में जो परमेश्वर की आत्मा है and all other और spirits. बाकी सारी आत्माओं में। Remember one thing: एक चीज हमेशा याद रखें those other spirits has power. कि बाकी आत्माओं में भी सामर्थ्य है। If they can trick you, they can kill you. अगर वो आपको बेवकूफ बना सकती है तो आपको मार भी सकती है। They can cause you to suffer financial loss. वो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियों को ला सकती है। They can cause sickness. They can inflict sickness in you. वो आपके जीवन में बीमारियों को भी डाल सकती है। They are so powerful. उनमें सामर्थ्य तो है। When you give them sacrifices, they can prosper your life. अगर आप उन्हें बलिदान देंगे तो आपके जीवन में उन्नति भी ला सकती है। God did not take away those powers from them. परमेश्वर उनसे सामर्थ्य लेते भी नहीं है। But it doesn't mean they are God. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो आत्मा परमेश्वर बन जाती है। You know, most of us, we enter into agreement with this spirit कई बार ऐसा होता है कि हम में से लोग उन आत्माओं के साथ वाचा बांध लेते हैं without understanding. बिना ये समझे, Because we enter into a covenant with those spirits क्योंकि हम उन आत्माओं के साथ जब वाचा बांधते हैं with our blood, अपने खून के with साथ the blood of या animals, जानवरों का लहू चढ़ाते हैं with some incense. या कभी-कभी कोई धूप बत्ती जलाते हैं, We commit with them every time. हम उनके साथ हमेशा वाचाएं बांध लेते हैं। People go and feed those gods लोग जाते हैं उन देवी देवता को खिलाते हैं and they say it's God. और वो कहते हैं ये परमेश्वर है। But one day लेकिन एक दिन they will come hunting against you. वो आत्माएं खुद आपके पीछे आपको पकड़ने आएंगी। They will never remember those blood that you sacrificed to them. वो याद नहीं रखेंगे जो लहू आपने उनके लिए चढ़ाया। If you stop one day, अगर आपने एक दिन भी वो चीजें करनी बंद कर दी, they will destroy you. उसी दिन से आपका नाश होना शुरू हो जाएगा। But some of us, लेकिन हम में से कुछ लोग in our pain, हमारे दर्द में we may decide not to come to church. हम ये निर्णय लेते हैं कि हम कलीसिया We में may आएंगे decide to doubt God. और हम परमेश्वर पे शक भी करते हैं कई बार, But God is ever patient with us. लेकिन परमेश्वर फिर भी हमारे साथ धीरज रखता है। He doesn't kill us. वो हमें मारता नहीं है जब हम उस पर शक करते हैं। We left the church doesn't mean God is going to attack and kill us. लेकिन अगर हम परमेश्वर की कलीसिया को छोड़ भी दें, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कल आके हमें मारने लग जाएगा। He comes to our spirit, He talks to us. वो आते हैं लेकिन हमें परेशान नहीं करते। I am with you. परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। God is not a deity. परमेश्वर कोई देवी देवता नहीं है। Let's go to Numbers chapter 23 verse 19. जाए गिनती किताब के अंदर 23वें अध्याय में Numbers chapter 23 verse 19. 23 का 19, गिनती किताब 23 का 19, 195 पेज नंबर। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे, क्या है वह वचन देकर उसे पूरा ना करे। Amen. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. Has He said? Will He not do? Or has He spoken and He will not make it good? God is not a liar. परमेश्वर झूठ नहीं बोलते। God does not require something in exchange before He blesses you. और परमेश्वर को आपसे कुछ चाहिए भी नहीं आपको आशीष देने के लिए। God cannot come and promise you heaven and earth परमेश्वर ऐसे भी नहीं कि आगे स्वर्ग और धरती का वादा आपसे करे like the way Satan do. या शैतान आपसे करता है। Satan, well, I will make you rich. शैतान बोलेगा मैं तुझे अमीर बना दूंगा।
दूंगा, You will become the best man on earth. तुम इस धरती के सबसे बड़े व्यक्ति बन जाओगे, I will make you the best, the most celebrated star on earth. इस धरती के ऊपर सबसे अमीर व्यक्ति बना दूंगा, I will give you something that you will never imagine. मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। Come to my kingdom. आओ मेरे राज्य में आ जाओ। The Satan campaigns for you to come. शैतान चाहता है कि आप उसके राज्य में मिल जाओ। People tells you about the what they have done to convince you to come. लोग बताते हैं कि आपको लाने के लिए शैतान ने क्या क्या किया, But when you step your foot, लेकिन जब अपना पैर everything changes. गलत चीज पर रख देते तो हर चीज बदल जाती है। They start tormenting your spirit. वो आपकी आत्मा को परेशान करना शुरू करते हैं। Most people do not sleep at night बहुत सारे लोग रात को सो नहीं पाते because how things were said to them. क्योंकि क्या उनके लिए किया गया है, It's not the way Satan does it. शैतान उनके लिए गलत चीजें करता है। When you come inside, he changes the game for you. वो आपके जीवन के अंदर अलग अलग चीजों को करता है। If he tells you tomorrow your son will be used to renew the covenant, वो कहता है कि तुम्हारा बेटे का इस्तेमाल होगा कल एक नई भाषा बांधने के लिए। tomorrow he will say your daughter is going to die. वो कहेगा कल तुम्हारी बेटी मर जाएगी। You will only cry. आप सिर्फ रो सकते हैं, But initially they will never tell you those लेकिन things. शुरुआत में वो आपको जब वाचा बांध रहे होंगे तब नहीं बोलेंगे ये सब They चीजें। talk so sweet for you to come. शुरुआत में शैतान हमेशा आपसे अच्छी तरह बात करेगा ताकि आप उसके राज्य में मिल जाएं। But the powerful spirit, God visits you in pain. लेकिन परमेश्वर की आत्मा अपने दुख में भी रहती है। He comforts you. परमेश्वर आपको आराम देते हैं। He brings you up without no condition. परमेश्वर किसी भी कंडीशन के बिना ही आपको मदद करते हैं। He blesses you even when you don't believe in him. अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते तब भी परमेश्वर आपको आशीष देते He हैं। gives you and he gives you forever. परमेश्वर आपको देते हैं और देते ही जाते हैं युगानुयुग के लिए। He don't demand for your blood. वो ये नहीं कहते कि अपना लहू चढ़ाओ तब मैं तुम्हें He दूंगा। don't demand for your son. वो नहीं कहते अपना बेटा चढ़ाओ तब मैं He तुम्हें don't दूंगा। demand for you to sacrifice your वो wife. ये नहीं कहते अपनी बीवी का बलिदान दो तब मैं तुम्हें ये चीज दूंगा। He's ever merciful लेकिन God. परमेश्वर तो हमेशा ही दया करते हैं। He doesn't lie. वो झूठ भी नहीं बोलते। If he say I will bless your generation, अगर परमेश्वर ने कह दिया कि तुम्हारी पीढ़ियों को मैं आशीष दूंगा, if he say you will not die, अगर परमेश्वर ने कह दिया कि तुम नहीं मरोगे, you won't die. तो तुम नहीं मरोगे। That is the only God that we can confide in. तो सिर्फ ये वही परमेश्वर है जो हर चीज में सामर्थ्य The रखता है। everlasting God. हमारा अनंत परमेश्वर। Any God कोई ऐसा परमेश्वर that you put in your house जो आपने अपने घर में सजा के रखा है and you do some और आप sacrifice, उसके लिए कोई बलिदान चढ़ा रहे हैं, it is not God. तो समझ जाए कि वो परमेश्वर Go नहीं है। today and remove them आज जाए और उसको बाहर निकालो and seek the face of God. और सिर्फ असली परमेश्वर की शक्ल देखें। James chapter 1 verse 13. हमको याकूबी किताब 1:13। James chapter 1 verse 13. Epistle of James after Hebrews. Epistle of James chapter 1 verse 13. इब्रानी की किताब के बाद याकूबी किताब पहला अध्याय 1 verse 13. पहला अध्याय का 13वां वचन। James 1 verse 13. याकूबी किताब 318 पेज नंबर नया नियम। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। Amen. Let no one say when he is tempted, I am tempted by God, for God cannot be tempted by evil. God is tempting me. It's not the powerful spirit I'm talking. जब भी कोई कहता है कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है तो परमेश्वर नहीं ले रहा। He has no time to tempt you. परमेश्वर के पास समय ही नहीं है आपकी परीक्षा He लेने का। has only the time to bless you. वो उनके पास समय सिर्फ आपको आशीष देने का ही है, He has only the time to protect you. सिर्फ आपको सुरक्षा देने का ही समय है। He's tempting you for what? वो क्यों आपकी परीक्षा लेंगे? He gave you the life. उन्होंने आपको जीवन दिया। It is the Satan that want to take away your सिर्फ life. शैतान ही है जो आपका जीवन ले जाना चाहता It है। is the Satan that want to bring us into destruction. सिर्फ शैतान ही है जो आपको नाश करना चाहता है। God cannot tempt you. परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेते। He's thinking good for you. वो आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। In the nature of God, He is love. परमेश्वर के चरित्र में ही प्रेम है। He only has the time to love us. परमेश्वर के पास सिर्फ समय में प्रेम करने का ही है।
So don't say God tempts you. तो ये ना बोले कि परमेश्वर परीक्षा ले रहा है, It's only Satan that tempts. सिर्फ शैतान ही है जो परीक्षा लेता है। He tempts us with money. वो पैसों से परीक्षा लेता है, We see the money. या पैसा देखते हैं, We don't care anything. We just want to get the money. जब हम पैसा देखते हैं तो हम कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए, Whether it's blood money, चाहे वो काला धन हो, we don't care. हमें कोई फर्क नहीं Just पड़ता, we want the money. बस पैसा मिलना चाहिए। And we can take any step. अरे कुछ भी कर सकते हैं पैसे के That's लिए, what Satan और does. शैतान यही करता है। But God gives you the money. लेकिन परमेश्वर जो आपको पैसा देता है, He don't tempt us वो परीक्षा नहीं लेता हमारी, because He's not an evil God. क्योंकि वो बुरा परमेश्वर है ही He नहीं, has no evil in Himself. उसके अंदर कुछ बुरा नहीं है। A powerful spirit. एक सामर्थ्य से भरी Let's आत्मा। go to Isaiah chapter 55 verse 11. हम खोले यशायाह 55 का 11। Prophet Isaiah chapter 55 verse 11. 776 पेज नंबर पुराना नियम 55 का 11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह सफल करेगा। Amen. This God. So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I pleases, and it shall prosper in the things for which I sent it for. Amen. Amen. If God opens His mouth, अगर परमेश्वर ने अपना मुंह खोला it comes, और वो पूरा होगा, it fulfills. वो जरूर होगा, That is who God is. और वही परमेश्वर है। Whatever He says comes to pass. जो भी परमेश्वर कहता है वो जरूर होता है। If Satan says you are going to die on the 19th day of this month, अगर शैतान कहता है कि इस महीने की 19 तारीख को तुम मर जाओगे, it is only God that counters them. सिर्फ परमेश्वर ही है जो इसको खत्म कर सकता है। Because my son will not die. परमेश्वर ही कह सकता है कि नहीं मेरा बेटा नहीं मरेगा, You will never die. कि तुम नहीं मरोगे। If you like, go to hospital and they say there is no oxygen. अगर आप हॉस्पिटल चले भी जाओ तो कहीं ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर। Have you not seen some people? क्या आपने कुछ लोगों को नहीं देखा Building will collapse कि जब बिल्डिंग भी टूट जाती है and they will stay 1 week, they didn't die. और वो कहते हैं अरे हमें तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, No water, no food, no oxygen. पानी नहीं था, खाना नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं थी। Some people, the building they will stay for 5 days, 6 days, no water, no food, no oxygen. कई बार ऐसा होता है कि इमारत टूट जाती है और लोग अंदर दब जाते हैं, पर फिर भी बिना पानी, बिना खाने, बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह जाते हैं And they will still be alive. और 5 दिन बाद जिंदा बाहर भी निकलते हैं। There are some people you will provide the best hospital, you provide oxygen, they have the whole money to save themselves. But when God says it's time for you to die, you have nothing to do. और कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार लोग बड़े-बड़े अस्पतालों में जाते हैं, सबसे अच्छे अस्पताल में खूब पैसा लगाते हैं, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन परमेश्वर जब कहते हैं कि तुम्हारे जाने का समय होगा तो उसे जाना ही पड़ता है। If you think you have no one, अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, you say my family is poor. आप बोलते हैं मेरा परिवार बहुत गरीब I है, have no connection to anywhere. कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं है हमारे काम करवाने का। When God says, लेकिन अगर परमेश्वर ने कहा I will make you rich. कि मैं तुझे अमीर बनाऊंगा, If you like, you have nothing. अगर आपके पास कुछ नहीं भी है, If you like, no one to connect you. कोई आपके साथ खड़ा नहीं है, When that time reaches, जब वो समय आएगा God will send someone which He already prophesied, and the person will locate you. You are not going to pay any corruption money for you to get whatever is going to make the word of God to come true. तो आपको जो भी परमेश्वर ने आप पे भविष्यवाणी करी है, तो आपको किसी भ्रष्टाचार की जरूरत नहीं, लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुना है आपके लिए, वो खुद आपके घर तक आएगा। Some people get very high job through bribery and corruption. कई बार लोगों को भ्रष्टाचार की वजह से बहुत बड़ी-बड़ी नौकरियां लग तो जाती हैं, But do you know that some people go beyond that position by grace and favor? लेकिन आपको पता है कि कई लोग उससे भी बड़ी नौकरी पा लेते हैं सिर्फ अनुग्रह और दया की वजह से।
You know, some people may be looking to bribe somebody to get something. कई बार लोग ढूंढते हैं कि किसको पैसा खिलाएं और कैसे नौकरी ले लें। But do you know that the manager of those people may be looking for somebody, going to their home and pleading for them to come and work? और क्या पता आप किसी को ढूंढ रहे हैं पैसा खिलाने के लिए, लेकिन वही इंसान और लोगों को ढूंढ रहा है कि कैसे नौकरी के लिए सही इंसान मिल जाए। Pray that God speaks in favor of you. तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके लिए बोले। No power will stop that. तो कोई भी सामर्थ्य उसे रोक नहीं पाएगा। When God says, you see this child here. When God says, I'm going to bless him. अगर परमेश्वर ने कह दिया कि ये बच्चे को आशीष मिलना है, No, you can't do. If you like, you're jealous. If you like, you want to stop it. You can't stop what God has said. आप कितनी ही जलन कर ले और आप कितना ही सोच ले कि इसको रोक पाएंगे, लेकिन अगर परमेश्वर ने कह दिया तो ये रुक नहीं सकता। There is something that comes by favor. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो तरफदारी के द्वारा ही आती हैं। People go and pay money, but people come searching for you. कई बार ऐसा होता है लोग जाके पैसा खिलाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है अनुदित कारण कि लोग खुद आके आपको नौकरी पकड़ाते हैं। The favor of God. परमेश्वर की तरफदारी। Once He's opened His mouth upon you. अगर परमेश्वर ने एक बार अपना मुंह आपकी तरफ खोल दिया, And the worst part is this. और सबसे अलग बात, Most people may be capable more than you. हो सकता है कुछ लोग आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हो। Have you seen that most people may be capable, may be talented, very brilliant more than you? कई बार आपने लगे लोग आपसे ज्यादा समझदार, पढ़े लिखे, अच्छे होते हैं, But you, that is not brilliant. आप में शायद इतनी समझ, इतनी पढ़ाई अच्छी ना हो, You pass all those people लेकिन आप फिर भी सारे पेपर पास करते चले जाते हैं and you take that position. और आप उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो वो इंसान नहीं पा सकता, You think it's by your power. और आपको फिर लगता है कि ये मेरे करने से हुआ है। You cross the most powerful people. आप बहुत मुश्किल लोगों का सामना करते करते आगे बढ़ जाते हैं। They have money more than you. उनके पास आपसे ज्यादा पैसा भी है, They have the connection more than you. आपसे ज्यादा अच्छे कनेक्शंस भी हैं, But the president says, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति कहता है if not you, no other person. कि नहीं, मुझे कोई और आदमी नहीं, लेकिन सिर्फ तुम ही चाहिए। They will say, why you take your wife? The president said, no, only him. I have said, him is fit for this position. I want to work with him. I choose him. और बाकी लोग कहेंगे क्यों इसको चुन रहे हो, हमारे पास पैसा ज्यादा पढ़ाई है, हमें चुनो। वो कहते हैं नहीं, मैंने इसी को चुन लिया, मुझे इसी के साथ काम करना है। Many people walk by bribery, but children of God walks by favor. बहुत सारे लोग हैं जो घूस खिला के आगे बढ़ते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोग तरफदारी से आगे बढ़ते हैं। There is nothing, when the favor of God is upon you, अगर परमेश्वर की तरफदारी आपके ऊपर है, there is nothing like I went and it did not succeed. तो अब ऐसा होगा ही नहीं कि आप जाएं और आप कहें कि अरे मैं सफल ही नहीं There हुआ। is nothing like that. ऐसा कुछ होगा ही नहीं आपके साथ। When the favor, when God speaks upon your family, लेकिन जब परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर तरफदारी बोल देता है, you know, many people will say, oh, I have 5 children. बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे 5 बच्चे हैं, But that 5 children, they have nothing doing. लेकिन वो 5 लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। But some family that they neglected their children, that they not become anything. और कुछ परिवार ने अपने बच्चों को जो नकारा हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, You see those children in very high position. आप देखेंगे कई बच्चे बहुत ज्यादा बड़ी पोजीशन पे लग जाते हैं। People say, how possible? लोग कहते हैं कैसे हो सकता है, The neighbor will say, how possible? अरे कैसे हो सकता है, We have tried with money. हमने तो पैसा खिला के भी We देख sold लिया। our house to make sure that my children get some government connections. हमने तो अपने घर तक को बेच दिया कि हमारे बच्चों का ही सरकार की तरफ से भी कनेक्शन लग जाए। Have you seen आपने देखा है ऐसे लोगों को, where some people pay money for position? जब कई बार लोग पैसा खिलाते हैं पोजीशन पाने के लिए, They will not see their money, they will not see their position. ना आपने उनको पैसा देखा, ना आपने उनकी पोजीशन देखी। Some people may give bribery. They will take the money and they will still not give the position. बहुत सारे लोग पैसा खिलाते हैं पर फिर भी उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता। And somebody who submitted with that money, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना पैसा खिलाए भी नौकरी को पा लेते हैं and his name will come out. और उनका नाम ऊपर हो जाता है। People say, why? लोग कहते हैं क्यों ऐसा हुआ? It's the favor of God. वो है परमेश्वर की तरफदारी उनके जीवन पे। Whenever God speaks, जब परमेश्वर कुछ कहता है it comes to pass. वो जरूर होता है। So always pray तो हमेशा प्रार्थना करें that God speaks. कि परमेश्वर बोले, That God speaks upon you. कि परमेश्वर आपके लिए बोले। Your prayer every day is God speak
तो हर रोज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर आप मेरे लिए बोलो, Speak upon my family. मेरे परिवार पे बोलो, Bless my children. मेरे बच्चों को आशीष दो, Because it is only your blessing क्योंकि सिर्फ आपकी आशीष है that is assured. जो पक्के हैं। That's what God says here. और वही परमेश्वर ने यहाँ कहा Nothing goes out from his mouth कि कोई भी चीज उनके मुंह से निकली and return void. ऐसा नहीं कि खाली लौट जाएगी, The Bible says void is return empty. वो मतलब खाली पर नहीं होगा। Whatever God send that word, अगर परमेश्वर ने कोई शब्द भेज दिया it will return accomplishing वो her. जरूर पूरा होने के बाद ही आएगा। Amen. आमीन। Let's go to James chapter 1 verse 17. Epistle of James chapter 1 verse 17. याकूब की किताब पहला अध्याय का 17 वचन, Epistle of James 318 पेज नंबर 99, 1:17. 1:17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और एक उत्तम दान ऊपर से ही है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। Amen. Every good gift, every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Variation. That's what New King James Version is talking about. Variation तो बात कर रहे हैं परिवर्तन की, means you can't find the type beneath the earth. In this earth we are living, and above you can't find the variation. There is no one you can match, you can't compare. You know, there is something that you can't compare. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप तुलना कर ही नहीं सकते कि वो चाहे कहीं पर भी हो। There is something you've been looking for comparison. You can't see something that can say it looks like or is coming closer. कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप तुलना कर ही नहीं सकते, आप कह ही नहीं सकते कि ये चीज इसके जैसी है। Every good gift. हर एक अच्छा वरदान, That's what I speak to. Every good gift comes from the light. हर एक अच्छा जो वरदान है वो परमेश्वर की ओर से, The light I'm telling you is the powerful spirit. और वो है परमेश्वर की ज्योति, Powerful spirit. एक सामर्थ्य से भरी आत्मा। You know, most of us should like to experience God. हम में से बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का अनुभव लेना चाहते हैं। If you try and do what you can do. Say, God, I want you to speak to me. आप कुछ भी जो करना चाहते हैं आप करें और आप बोले कि परमेश्वर आप मुझसे बात करें। I see some people that say God speaks to them. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हाँ परमेश्वर ने मुझसे बात करी। It's so scary, तो कई बार चीजें डरा देती हैं। I found someone. What the God is talking, those people, they are few on this earth who God can speak. बहुत सारे कुछ ही ऐसे लोग हैं दुनिया के अंदर जिनसे परमेश्वर बात करता है। Listen, when God is speaking, the whole ear is blocked, and those people, they will be rolling on the floor. और आप देखेंगे कि जब परमेश्वर उनसे बात करता है तो कहते हैं और सब आवाजें बंद हो जाती हैं। It's a powerful spirit. ये बहुत सामर्थ्य की आत्मा होती है। God is so powerful. परमेश्वर में बहुत ज्यादा सामर्थ्य भरा है। But we can't understand this. I am telling you that God is so powerful. परमेश्वर में बहुत ज्यादा सामर्थ्य है। But those who are in spirit will understand that God is the most powerful spirit ever. लेकिन जो आत्मा में है वही समझ सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा क्या सामर्थ्य है। In His powerfulness, He is not harmful. अपने सामर्थ्य के अंदर भी वो नुकसान नहीं In पहुंचाता। that powerfulness, He is not destructive. ऐसा नहीं है कि वो लोगों का विनाश करता है। Imagine the second spirit, which is Satan. आप देखिए वो शैतान की आत्मा, In that mightiness, he's very wicked. वो बहुत बुरा है। Satan can chop off a small baby, means a woman that is pregnant. Satan can chop it off and eat it. And he's smiling. कोई भी औरत जो गर्भवती है शैतान उसके बच्चे को भी वही खत्म कर सकता है। That is to tell you how wicked this Satan is. तो हमारे भाई यही बताना चाहते हैं कि शैतान कितना बुरा है। Satan rejoices when you are shedding blood, when your nose are being cut. That is something that gives them joy. जब आप अपना लहू बहाते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं तो शैतान को बहुत अच्छा लगता है। When your daughter, when your son, when your family member, anyone dies, that's what gives Satan joy. जब आपका बेटा या बेटी अपने परिवार से कोई भी मरता है तो शैतान को बहुत खुशी And they will come and they will promise you that another person will die. और वो आएगा और आपको वादा देगा कि अरे एक और बंदा भी मरेगा, They have joy in evil. क्योंकि उसको बुराई करने में मजा आता है। That is Satan. वो शैतान है। And this Satan have multiple spirits. और इस शैतान के पास बहुत सारी और आत्माएं हैं। Lucifer is the commander of satanic spirits. जो लूसीफर है वो सारी की सारी शैतानी आत्माओं का हेड है। But they have so many agents. बहुत सारे उसके एजेंट्स हैं।
And that's most people fall in the hands of this deity, this spirit, and they confuse themselves and say, this is God. और बहुत सारे लोग इन शैतानी शक्तियों में विश्वास करते हैं, उसके बाद कहते हैं ये परमेश्वर है. Any God that is destructive, any God that is violence, any God that requires everyday sacrifice, any God that derives joy when you are in pain, it is not the God I am talking about. तो कोई भी ऐसा परमेश्वर जो आपके दुख होने से खुश होता हो, आपको विनाश करता हो, आपके लिए गलत करता हो, वो कोई भी ऐसा परमेश्वर नहीं जिसकी आज हम बात कर रहे हैं. The Father of light. हम बात कर रहे हैं ज्योति के पिता की. That is this God I'm talking. The हम उस Father of परमेश्वर, light. हम ज्योति के पिता की बात कर रहे हैं. When He blesses you, you have cool of mind. और जब वो आपको आशीष देता है, भरपूरी से आशीष देता है. You know, when you have God, जब आपके पास परमेश्वर होता है, when you don't commit yourself in anywhere, जब आप अपने आप को किसी और चीज में नहीं बांधते I हैं, don't think when you stay only yourself in one room, you will not be afraid. तो अगर आप अकेले कमरे में भी रहेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा. Yeah, sometimes also, no, when we are in the room, many people like say, I am afraid, I am afraid. Sometimes maybe I can't say, but if you know God that you are serving, and if you know that you have never have any commitment with any other God, staying in one room, you will not be afraid of anything. तो बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं अकेले कमरे में बैठ के उन्हें डर लगता है. तो हमारे भाई कह रहे हैं कि अगर आप उस परमेश्वर की आराधना करते हो जो सच्चा परमेश्वर है, और आपने किसी और देवी देवता का कोई बात वाचा नहीं बांधी है, तो आपको डरने की कोई बात नहीं. Because you will see that God is a calm spirit. क्योंकि आप ये जानते हैं कि परमेश्वर एक आत्मा है. Now let's go to the names of God. अब हम बात करते हैं परमेश्वर के नामों की. This is very, very important. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण The है. names of God. परमेश्वर के नाम, And these names of God, they are so special. और ये बहुत ज्यादा अद्भुत है. The names of God have, literal meaning in our life. और परमेश्वर के नामों का अर्थ है हमारे जीवन में. Sometimes this name is something that, like people who pray. तो कुछ लोग जो प्रार्थना करते हैं, When you pray, I want you to, if you can write down some of these names, I want you, when you pray, introduce these names when you want to pray to तो God. हमारे भाई कह रहे हैं कि अगर आप प्रार्थना करते हैं तो इन नामों को लिख ले, ताकि आप प्रार्थना करते हुए इन नामों को लें. It works. क्योंकि ये काम करते हैं. For instance, जैसे कि some of us here, कुछ लोग यहाँ पर, if our mom or dad हमारे माता पिता calls us our pet names, हमारे घर के नामों से हम बुलाते हैं. even when we don't want to do the work, maybe your mom wants you to do some work, जैसे कि मम्मी चाहती है कि आप कुछ काम करें, so he will call you your pet name. वो आपके घर के नाम आपको बुलाएगी. And when he calls that pet name, he catches your heart. और फिर वो आपको नाम आपको अच्छा लगता है, And if you're sluggishly smiling, you will start to do those work. और आप फिर मुस्कुराते हुए काम कर देते It हो. works in God. तो ऐसे ही परमेश्वर में भी एक चीज काम करती है. Call God his name. अगर आप परमेश्वर का नाम लेके उन्हें बुलाते हैं, He wakes up तो वो जाग जाते हैं. and he said, let me answer my children. तो वो कहते हैं हाँ, मुझे अपने बच्चों So को जवाब देना when you चाहिए. pray, start with calling God those sweet names. तो जब भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर के नामों को लेना शुरू करें पहले. It opens the heaven. तो वो स्वर्ग के रास्ते खोल देता है. Amen. आमीन. Let's see one of the names of God. तो परमेश्वर का नाम देखते हैं. Exodus chapter 3, verse 13 to 14. निर्गमन 3 का 13 और 14. Exodus chapter 3, verse 13 to 14. निर्गमन की किताब 3रा अध्याय 13 और 14 वचन. 70 पेज नंबर पुराना नहीं. मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूं, तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं? परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं. फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से ये कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है. Amen. Then Moses said to God, indeed, when I come to the children of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they say to me, what is his name? What shall I say to them? And God said to Moses, I am who I am. Amen. Amen. The I am
This is the name of God. कि परमेश्वर का नाम है मैं हूँ। I am who I am. मैं हूँ जो मैं हूँ। He never changes. वो कभी बदलता नहीं है। We can change. हम तो बदल सकते हैं। You and I, we are never who we are. आप और मैं, हम जो बोलते हैं हम वो नहीं होते हैं। If I have many Salman, like let's say Shah Rukh Khan, Salman Khan. जैसे शाहरुख खान या सलमान खान। Yes, many of them, these celebrities that have so many workers, they have so many staffs, they have so many house cleaners. इन लोगों के घर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं। If Salman Khan become wretched, broke, poor today, अगर आज सलमान खान गरीब हो जाए, would those servants will they stay and serve him? क्या वो नौकर उसके साथ रहकर उसकी सेवा करेंगे? Impossible. नहीं करेंगे। Impossible. But when you become somebody, लेकिन जब आप कुछ बन जाएंगे when you don't become somebody, या कुछ नहीं भी बनेंगे, God is still with you. परमेश्वर फिर भी आपके साथ है। I am who I am. परमेश्वर कहता है मैं हूँ जो I मैं can't हूँ। change. मैं I बदलता am नहीं who हूँ। I am. मैं जो कहता हूँ मैं वही हूँ। There is no lies in me. मुझ में झूठ है ही नहीं। You and I might change. God will never change. आप और मैं तो बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर नहीं बदल सकता। I am who I am. मैं वो हूँ जो मैं हूँ। The God of yesterday, the God of today, and the God of वो tomorrow. परमेश्वर जो कल था, आज है और आने वाले कल में भी होगा। If you believe in me, I will be with you in pain, in poverty, in truth, in death, in sickness. I will never leave you. अगर तू मुझ में विश्वास करता है तो गरीबी में, परेशानी में, मुश्किल और बीमारी में हर एक समय में तेरे साथ रहूंगा और ना कभी छोड़ूंगा। We may place to love someone. हम किससे प्रेम अगर करते हैं Husband and wife may place to love some. But we can prove and say to you how much I love you. तो जो पति पत्नी होते हैं उसे प्रेम करते हैं और कह सकते हैं कि हाँ हम तुमसे प्रेम करते हैं। If one of them becomes sick लेकिन अगर उनमें से कोई बीमार हो जाए and he can't walk, और वो चल नहीं सकता, and the one of them is taking care of the other, एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, ख्याल रखता है, one day he will be so tired. कि एक दिन तो वो भी थक जाएगा। He say, I'm tired of you. वो कहेगा कि मैं तुमसे थक गया हूँ। If you want to die, die. Let me live my life. अगर मरना है तो मर जाओ, लेकिन मेरे जीवन से चले जाओ। We can't last. That is who we are. We are always tired. क्योंकि हम सब इंसान हैं और हम एक बार थक ही जाते हैं। We start to ask ourselves, how long will I be like this? How long will I live this way? हमारे जीवन में कोई भी परेशानी आती है, हम कहते हैं कब तक हम इन परेशानियों का सामना करते रहेंगे? God stays forever. लेकिन परमेश्वर हमेशा रहते हैं। You are not walking. अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। People reject you. लोग आपको नकार रहे हैं, He stays. तो फिर भी परमेश्वर आपके साथ है। People say, no, you are not their type. He say, you are my type. अगर परमेश्वर लोग कहते हैं कि तुम मेरे जैसा मैं You are चाहता हूं। not hungry. You are hungry. God is with you. अगर आप भूखे हैं या नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। I am who I क्योंकि am. परमेश्वर कहता है मैं वो हूँ जो मैं हूँ। That is the name of वो God. परमेश्वर का नाम है। And it's not just a name. और ये सिर्फ एक नाम नहीं, The name touches the heart of God. परमेश्वर के जो नाम है, परमेश्वर के This दिल की name करीब है। describes in truth who really is God. क्योंकि ये परमेश्वर के नाम बताते हैं कि सच में परमेश्वर कौन है। Genesis chapter 16 verse 3 to 4, verse 13 to 14. उत्पत्ति की Genesis chapter 16. उत्पत्ति किताब Genesis chapter 16 16. अध्याय 17 पेज नंबर। Genesis chapter 16 from 13 to 14. उत्पत्ति 16 का 13 से 14 तक। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अतल रोई रखकर कहा, क्या मैं यह भी उसके जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही? इस कारण उस कुएं का नाम लहरोई कुआं पड़ा। वह तो कादेश और बेरेत के बीच में है। Amen. Then she called the name of the Lord who spoke to her. You are the God who sees. For she said, have I also here seen him who sees me? Therefore, the well was called Bel-Hairoi. Observe, it is between Kadesh and Ben. Amen? Amen. The name of God, Bel-Hairoi. Amen? परमेश्वर का नाम लहरोई। Write those things down इन नामों को लिख लें and use it when you pray. और इनका इस्तेमाल करें जब आप प्रार्थना करते हैं। This is a Hebrew word, Bel-Hairoi. ये एक इब्रानी शब्द है। It meaning the well of him that seeth me. He seeth me. He knows me. क्योंकि Bel-Hairoi. क्योंकि कुएं का नाम है और इसका मतलब है कि वो जो मुझे देखता है। God sees me wherever I am. मैं जहां पर भी होती हूँ परमेश्वर
परमेश्वर मुझे He देखता है, sees whatever I do. जो भी मैं करती हूँ परमेश्वर मुझे देखता He है, sees me in pain. वो मुझे दर्द में भी देखता है, He sees me when people reject me. जब लोग मुझे नकारते हैं तब भी परमेश्वर मुझे He's देखता the है। God that sees everything you do. तो ये वो परमेश्वर है जो आप हर कुछ करते हैं उसे देखता He's है, the God that watches over you. जो आपके हर समय देखता रहता है। When you want to hit your foot against a stone, जब आप किसी पत्थर के पास अपना पैर मारना भी चाहते हैं, He saves you from hitting वो your आपको foot बचा against लेता है कि a stone. अपना पैर आप खराब ना कर पाए। When car wants to hit you, जब कोई से को मारना चाहे, He's the God that sees the car want to destroy my तो child. परमेश्वर कहते हैं कि नहीं ऐसा क्या है जो मेरे बच्चे को परेशान And He makes करेगा, sure that doesn't happen. और वो ऐसा कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। The God that sees me. वो एक ऐसा परमेश्वर जो मुझे देखता है। Bella Hallelujah. यहाँ पे लिखा है लहरोई। Amen. आमीन। That is the great name of God. ये परमेश्वर का नाम है। When you want to start to pray, अगर आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं, start to call His name. परमेश्वर के नामों को बुलाएं। The I am, the I am. आप बोले कि जो मैं हूँ, The Bella Hallelujah. लहरोई नाम ले Call परमेश्वर, the name of God. परमेश्वर के नामों को पुकारें And the prayer will be answered. और आपकी प्रार्थना का जवाब आ जाएगा। Amen. आमीन। Let's go to Genesis chapter 17 verse 1. हम खोले उत्पत्ति के 17 का 1। Genesis chapter इसी पेज 17 पर verse 1. 17 का 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसके दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। आमीन। When Abraham was 99 years old, and the Lord appeared to Abraham and said to him, I am the Almighty God. Walk before me and be blameless. The Almighty God. कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Almighty God. सर्वशक्तिमान ईश्वर, That means nothing can be compared with His power. कि इसका मतलब कोई भी चीज जो परमेश्वर के सामर्थ्य तुलना नहीं रख सकती। आमीन। He can command the whole world to shake. वो आपको कह सकते हैं कोई चीज हिलने के लिए, And He will say, none of any building will fall. वो कह सकता है परमेश्वर की पूरी दुनिया हिल जाए लेकिन फिर भी एक भी इमारत ना गिरे, He's Almighty, powerful God. कि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। When we say God is powerful, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर में सामर्थ्य है, you know, most people, when you go home, जब बहुत सारे लोग घर जाते हैं, if you don't know about God, अगर आप परमेश्वर के बारे में नहीं जानते, look at yourself. Or you go to mirror, look at yourself. आप शीशे के सामने जाओ, खुद अपने आप को देखें, Ask yourself one question. अपने आप से एक प्रश्न पूछें How was I made? कि मुझे कैसे बनाया गया। Ask yourself, how was I? Means how was I made? अपने आप से प्रश्न पूछें कि मुझे कैसे बनाया गया। I used to ask like people like this, everything here, maybe this Sony made it, this farm, we have company, car, Mercedes. Most people, like for instance, if you ask people to choose which company you want to make you, like when you want to come out from your mother's womb, if any company will choose the best company to make them. तो जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम बताते हैं कि किसी ने इसको बनाया है, किसी कंपनी ने इसे बनाया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अगर परमेश्वर ने किस कंपनी को आपको बनाना चाहिए तो आप सबसे अच्छी कंपनी का नाम लेंगे। If I see the human brain, अगर हम इंसानों का दिमाग देखें, those people who do biology, physics, have you ever seen the human brain? जो लोग बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं, क्या उन्होंने कभी इंसानी दिमाग देखा है? It's wonderful. बहुत अद्भुत होता है। If they open the brain, अगर आप दिमाग को खोलें, how do nerves? Have you ever asked yourself, how do I walk? कभी हमने अपने आप से पूछा कि मैं चलता कैसे हूँ? Ask yourself, how do you move this leg? I used to think, how this leg moves? How? ये पैर कैसे चलते हैं, कैसे What हिलते makes हैं? it to move? क्या ये चीज आपके पैरों को चलाती है? I want to take your brain where you never think before. तो अपने दिमाग को वहां ले जाए जहां हम कभी नहीं गए। How TV works, I will plug it on the socket, I will use the remote, I will choose the channel. If there is no light, it will not work. तो कैसे हम देखते हैं कि अरे हम रिमोट उठाएंगे, टीवी चलाएंगे, लाइट नहीं होगी तो टीवी नहीं चलेगा। Ask yourself, means how you see, how do you see, how? आप सोचें अपने आप से कि मैं देखता भी कैसे हूँ? Do you need to plug yourself in machine so that you can see? क्या आपको अपने आप को चार्जिंग पे लगाना पड़ता है चलने के लिए? If you see the human eyes, you will be shocked. अगर आप किसी इंसान की आंख को देखेंगे कि वो कैसी होती है तो आप अचंभे में आ जाएंगे। How God produced all this our body. When you see the human brain, I said, oh my God, what really happened? तो जब हमारे भाई ने पहली बार इंसानी दिमाग को देखा तो उन्होंने कहा कि कैसे बना होगा? Oh, the sense message
everything hearing, every touch. When somebody touches you, you know. कि हर एक चीज जो दिमाग से सिग्नल आती है, कोई आपको छूता भी है तो आपको पता लग जाता है किसी ने मुझे When छुआ। somebody tap your back, you know something is not well with you. अगर आपके पीछे किसी ने ऐसे मारा तो आपको पता है किसी ने मारा, आप पीछे मुड़ के जरूर देखते हैं। I don't know how you have taken time to ask about how all these things came to be. लेकिन हमने ये चीजें कभी सोची नहीं कि ये सब चीजें हमारे कैसे होती हैं। It means he is not lying. He is the Almighty God. इसका मतलब कुछ ऐसा है जो परमेश्वर है और वो हमें चला रहा है। It's not by Almighty by saying he is really the Almighty God. जब हम कहते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तो सच में उसमें ऐसी शक्ति है जो किसी में नहीं। If life is being produced when you pay, not everybody will live. You and I will not have the opportunity to live because only the rich will buy life and read. Because this life will not even be for the poor. तो अगर आप ये सोचें कि अगर मुझे अपने जीवन के लिए पैसा देना पड़े तभी मैं जिंदा रहूंगी, तो शायद हम में से बहुत सारे लोग जी ही नहीं पाए, सिर्फ अमीर लोग जी पाएंगे। The Almighty God. कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, He is really Almighty. वो सच में ही सारी शक्ति रखता है। He is a gigantic God. He is so big. वो इतना बड़ा परमेश्वर है जो कहीं समा नहीं सकता, He has no comparison. कहीं तुलना नहीं हो सकती उससे। Deuteronomy chapter 32 verse 4. व्यवस्था विवरण 32 का 4। Deuteronomy chapter 32 verse 4. Write down the names of God. Call him these names. परमेश्वर के नाम लिखे, उनके नामों को बुलाते। When I'm in pain, I use this name and I pray. हमारे भाई कह रहे जब भी वो दर्द में होते हैं तो इन नामों को लेते हैं और फिर प्रार्थना करते हैं। Deuteronomy chapter 32 verse 4. व्यवस्था विवरण 32 का 4, 256 पेज नंबर। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। Amen. He is the rock. His work is perfect. All his ways are justice, a God of truth and without injustice. So his name, the God of justice, his name, the God of truth, and also the God of righteousness and the God of uprightness. तो कौन सा परमेश्वर है जो न्याय करता है, जो धर्मी है और जो सीधा और उसमें कुटिलता नहीं? The God of justice, न्याय का परमेश्वर, he is the rock. वो चट्टान है, He is a perfect God. वो एक सच्चा सिद्ध परमेश्वर है, The rock is God. वो चट्टान ही परमेश्वर है। That's why I used to, when we were small, we used to hear that music. Rock of ages, clear for me. तो एक भजन भी है कि जो चट्टान का परमेश्वर, He is the rock. क्योंकि परमेश्वर ही चट्टान है, He gives water. वो पानी भी देता है। The history of this water we are drinking came from the rock of God. तो आज जो भी हम जल पी रहे हैं वो भी इतिहास में परमेश्वर की चट्टान से ही आया है। Who manufactured water? किसने बनाया पानी पीने वाला? You can live up to even 4, 5. You can even live up to 1 month without food. आप खाने के बिना तो शायद 15, 20 या 1 महीने तक रह सकते हैं, And you can even die in 2 days, in 25 hours without water. लेकिन 2 दिन में शायद बिना पानी के आप मर सकते हैं, Our body is mostly made full of water. क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारा पानी है। Rock of ages. तो इसका मतलब वो परमेश्वर की चट्टान है। When there was no borehole, when there was no pump in villages, we go to the stream, we fetch water. तो अगर गांव के अंदर जहाँ पानी भी नहीं होता तो लोग जाते हैं नदियों के पास और पानी लेते हैं। When you are in village, when there is no tap, no borehole, where did you get water? अगर आप गांव में जाते हो नलके नहीं होते तो आप पानी कहाँ से लेते हैं? There are streams where water flows and we drink them. तो छोटी छोटी पानी की लहरें होती है और हम वहाँ जाके पानी लेते The हैं। rock of ages. तो एक ऐसा परमेश्वर चट्टान है। Many people don't find the meaning of that word. बहुत सारे लोग परमेश्वर के नाम का मतलब ही When नहीं he said, जानते। I am the rock, जब परमेश्वर कहते हैं मैं चट्टान हूँ from that rock I bring springs of water और उस चट्टान से मैं जल की लहरें लेकर आता for हूँ the survival of the children of God. ताकि परमेश्वर के बच्चे जीवित रह पाए। Who made water? किसने बनाया पानी को? Oh, Bisleri, all these things, they just refine already what is made, Bisleri, Kinley, all this one. They just refine. तो They जब say because there is no back, they just refine. तो अगर हम पानी की अलग अलग कंपनियां देखते हैं, बिस्लरी, किनली, तो ये सब पानी को सिर्फ साफ करके देते हैं, लेकिन पानी तो बनाया नहीं इन्होंने। They never produce water. ये पानी नहीं बनाते हैं। Most of the company are there in villages. बहुत सारी जो गांव के अंदर भी कंपनियां हैं, They go and buy the stream, the rock, the stream that distribute, and they take
collect that water from those तो places. नदियों के पास जाते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं और लेकर आते हैं And they put it inside the bottle and they sell और to प्लास्टिक की us. बोतल में पानी भर के आपको बेचते हैं। God is the rock of ages. परमेश्वर ही चट्टान है। Amen. आमीन। This is the best part. What I love to call God. What I love to call God is the verse that I'm going to share with you now. This is the name which I know God, and this is the name that I love to call Him. If you will borrow this word today, oh, you will be blessed. Amen. हमारे भाई कह रहे हैं कि अब वो एक ऐसा परमेश्वर का नाम बताने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनको बहुत प्रिय है, और अगर आप उस नाम को आज जान लें तो आप बहुत ज्यादा आशीषित भी होंगे। Amen. Let's go to Daniel chapter 7 verse 22. दानियेल की किताब 7वां अध्याय 22वां वचन। Daniel chapter 7 verse 22. Prophet Daniel chapter 7 verse 22. Daniel दानियेल 7:22 Daniel after Ezekiel. पेज नंबर 1042 पुराना नियम 1042 Daniel 7:22 chapter 7 verse 22. 7:22 जब तक वह अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग न्यायी न ठहरे और पवित्र लोगों के राज्य अधिकारी होने का समय न आ पहुंचा। Amen. Until the ancient of days came, and a judgment was made in favor of the saints of the Most High, and the time came for the saints to possess the kingdom. Ancient of days. यहाँ लिखा है परमेश्वर का नाम अति प्राचीन। That's one of the beautiful name of God. Ancient of ये days. परमेश्वर का एक सुंदर नाम है अति प्राचीन। That means ancient of days means He is, He was, and He will continue to be. तो इसका मतलब ऐसा अति प्राचीन मतलब जो था, जो है और जो आने में रहेगा। You and I, we have only limited time. आपके पास और मेरे पास तो कुछ ही साल है जीने के, And it is in the heart of every living being on earth और हर किसी के साथ यही है जो धरती पर इस समय जिंदा है that one day we shall die. कि एक दिन तो हम मरेंगे ही। Death मृत्यु is in agreement with you and I. वो आपके साथ और मेरे साथ वाचे बांधे हुए हैं, And the assurance of living even tomorrow, it is not in you and I. और आपके मेरे पास इतना भी पक्का नहीं है कि हम कल भी जिंदा रहेंगे। You might see me standing here हो tomorrow. सकता है हमारे भाई को आज हम यहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं, Tomorrow I might be no more. हो सकता है वो कल ना हो। That is the life we are. ऐसा जीवन है हम सबका, But He is the ancient of days. लेकिन जो परमेश्वर है वो अति प्राचीन है। Means He was already, इसका मतलब हमारे होने से पहले भी था and He will continue to be, और आज भी है और आगे भी रहेगा and up to today He is. और आज तक भी है। He have no limitation. He will not die. Death, it is not. He is the giver of life. He is the ancient of उसी ने days. सबको जीवन दिया है और वही हमेशा रहता है। And that is the name. Mostly I say God love this name. तो हमारे भाई कह रहे हैं कि परमेश्वर को ये नाम बहुत पसंद है, Ancient of days. अति प्राचीन। Amen. Let's go to Revelation chapter 1 verse 8. We are going to close in 5 minutes. Revelation chapter 1 verse 8. प्रकाशित वाक्य 1:8 Revelation chapter 1 verse 8. प्रकाशित वाक्य 1:8 नया नियम पेज नंबर 343 Revelation 1 verse 8. 1:8 प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा हूं। Amen. It says, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, who was, and who is to come, the Almighty. I am the Alpha and Omega. Means God is the all and all. तो इसका मतलब परमेश्वर सब कुछ है। When you give God His respect, when you give God His right, He जब परमेश्वर answers. He knows that my son is calling me. He knows that who is calling me knows who I am. तो परमेश्वर को जब इज्जत देते हैं, उनके नाम को पुकारते हैं, तो उन्हें पता है कि किस बेटा और किस बेटी को क्या मुझसे चाहिए। God is where everything ends. परमेश्वर वहाँ है जहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाता You है। see, God is where everything ends. जहाँ हर चीज समाप्त हो जाती है, वहाँ परमेश्वर है।
If it is the president of America, the most powerful president on earth, अगर आप सोचते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो सबसे ज्यादा सामर्थ्य से भरा राष्ट्रपति है, one day he will go and he will kneel in front of God and he will take account of all that he has done. एक दिन तो वो भी घुटनों पे आके परमेश्वर को न्याय देगा। So all this power on earth ends here, but God is the controller of everything. तो एक दिन जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो भी अपने जीवन का लेखा जोखा उस परमेश्वर को देगा और इसलिए परमेश्वर वही जहाँ सब कुछ समाप्त हो जाता है। There are many names. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. कि परमेश्वर अल्फा ओमेगा मतलब कि शुरुआत और अंत। Let's go to Isaiah 44 verse 6. I'm closing. Yes, sir. Isaiah 44 verse 6. यशायाह 44 का 6। Isaiah 44 verse 6. Prophet Isaiah chapter 44 verse 6. यशायाह 44 का 6, 864 पेज नंबर पुराने। यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो इसको छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। Amen. Thus says the Lord, the King of Israel, and his Redeemer, the Lord of hosts. I am the first, I am the last. Beside me, there is no other God. Amen. He is the first, He is the last. Only one person. He is the first, He is the last. आप सोचिए कि एक ही चीज है और वही शुरू में भी थी और वही अंत में भी। Can anyone be that? क्या कोई और ऐसा हो सकता है? Let's all of us form a line. अगर हम सब एक लाइन लगा लें यहाँ पर, And we love that you be in the first. और ब्रदर लफ्सा सबसे पहले खड़े हो जाएं। I want to see brother Loft also at the back side, the last. Is it possible? अगर ब्रदर लफ्सा पहली जगह पे खड़े तो क्या वो अंत में भी खड़े होंगे? We are all in the line right now. हम सब एक लाइन में खड़े अगर हो, Brother Lofstar is the first person. तो अगर भाई लफ्सा पहले नंबर पे खड़े हैं, Will he still be in the first and still be at the क्या वो पहले नंबर पे और आखिरी में एक साथ खड़े हो सकते हैं? It's impossible. ये नहीं हो सकता। Either we are the first या तो हम पहले में होंगे or either we are the last. या हम अंत में होंगे। The both is impossible. दोनों चीजें साथ में नहीं हो सकती। But it's only possible in God. लेकिन ये चीज सिर्फ परमेश्वर के लिए ही संभव He है, is the Lord of hosts. क्योंकि वो परमेश्वर है जो प्रभु है, He is the Lord of hosts. He is the Redeemer. कि वही है जो छुड़ाने वाले हैं। The Lord of hosts. It means that everything ends in Him. इसका मतलब जो हर एक चीज कहाँ अंत हो जाती है परमेश्वर में। The last verse I will say is Jeremiah chapter 23 verse 6. यिर्मयाह 23 का 6। Jeremiah 23 verse 6. We conclude here today. Jeremiah 23 verse 6. यिर्मयाह किताब 23वां अध्याय 6वां वचन। This is the last time I want you to write. There are many of them, but we have no पुराना नियम time. 916 पेज नंबर 23 का 6। उसके दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा का नाम यहोवा हमारा धार्मिकता रखेगा। आमीन। Amen. 916 पेज नंबर 23 का 6। He says, in the days Judah will be saved and Israel will dwell safely. Now, this is his name by which he will be called. The Lord our righteousness. God said, this is, he made this clear. परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया है He said, this is the name. कि यही वो नाम है। The Bible uses the word name. बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने नाम शब्द का इस्तेमाल By किया which we should address God. कि वो नाम जिसके द्वारा हम परमेश्वर से बात करें। It's written in God. He said, the Lord our कि righteousness. परमेश्वर हमारी धार्मिकता, यहोवा हमारी धार्मिकता, He is the only God that is righteous. क्योंकि वो ही अकेला परमेश्वर है जो धर्मी है, A righteous God. एक धर्मी परमेश्वर You cannot find revenge, जो बदला नहीं लेता, anger, गुस्सा नहीं करता, jealousy, जलन नहीं करता, deceitful. धोखा नहीं देता He doesn't lie. और झूठ नहीं बोलता। He doesn't confuse us. वो हमें कंफ्यूज भी नहीं करता। He
is a righteous God. वो एक धर्मी परमेश्वर है। We should pray with that name. हमें उस नाम के साथ प्रार्थना करनी We चाहिए। should understand who is God. हमें समझना चाहिए परमेश्वर कौन है। God is not who we think. परमेश्वर वो नहीं जो हम सोचते हैं। God is the spirit in which no one else have ever seen and no one else can describe him, and he is the only true God that understands the pain you and I goes every day. He is the God that thinks good for us. तो ये वो परमेश्वर है, जब आपके और मेरे जीवन में जब दुख का समय होता है तो परमेश्वर देखता है और हमारी हर एक चीज पर ध्यान देता है। And he is the only righteous God और वो अकेला ही एक धर्मी परमेश्वर है that fights against other gods because of our safety. और वो बाकी देवी देवताओं से लड़ता है हमारी सुरक्षा के लिए। If God is not there, अगर परमेश्वर नहीं होता, I don't think anyone will live, आपको लगता है कि कोई जी पाता? because all of us we belongs to Satan. क्योंकि हम तो सिर्फ शैतान से ही नाता रखते हैं। Because we will not eating any food, क्योंकि हम कोई खाना भी नहीं खाते we will become vampires, और अगर हम कुछ खाना नहीं खाएंगे तो हम सब चुड़ैल बन we will जाते हैं become cannibals, और लोगों को खाने वाले बन जाते हैं। we will all be drinking blood and eating human beings. और सिर्फ जो शैतान होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ लोगों का लहू पीते हैं। And that is the word in the word of Satan. और शैतान ऐसे ही कार्य करता है। They eat, they drink blood, they have no वो food, इंसानों their का- food is only human blood. शैतान कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन उनका खाना सिर्फ इंसानों का लहू है। It is only this God, the righteous God, that have made you and I, we never belongs to that group. और सिर्फ वो धर्मी परमेश्वर है जिसने हमें ये अधिकार दिया कि हम शैतान से नाता ना रखें। Let us understand who God तो हम is. समझे कि परमेश्वर कौन है और प्रार्थना करें। When we understand Him, He understands और us. हम परमेश्वर को समझेंगे तो परमेश्वर भी हमें समझेंगे। If you are not worshiping this God from today, you have to make a rethink. तो अगर आप असली परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं तो आज आपको सोचने की जरूरत है And change और and बदले। worship God. As you do that, और ऐसा may अगर you हम be करें, blessed. तो In परमेश्वर Jesus के नाम Christ's को- mighty name we pray. Amen.